Hello everyone. Now let's continue with the third component of our endomembrane system, lysosomes. We have completed with the discussion on endoplasmic reticulum. Then we have also seen the structure and function of Golgi apparatus. Now the lysosome and vacuoles. So of that, the third component is your lysosomes. Lysosomes are very small microscopic structures. They can be visualized only under electron microscope due to very small microscopic size such as 0.2 to 0.8 micrometer इतने छोटे हो सकते हैं. Therefore they are visualized only under electron microscope. Okay, माइक्रोस्कोपिक रहने की वजह से साइज लिख लो उनका 0.2 माइक्रोन टू 0.8 माइक्रोन इतना छोटा हो सकता है इनका साइज. दे आर लाइसोसोम्स. लाइसोसोम देखो इसका वर्ड को अगर तुमने ब्रेक किए यू विल फाइंड टू वर्ड्स यूनाइटेड हियर. Lyso means lysis and soma means body. Lyso means lysis and soma means body. So lysis is the breakdown. Hydrolysis, you must have heard the word hydrolysis. So hydrolysis means the breakdown of water. Okay, hydrolysis. Similarly, lysis is the breakdown and the soma means body. So it is the cell organelle or the cell part which is associated with breakdown of something. So it is associated with breakdown of something means it is associated with breakdown, digestion, intracellular digestion of certain materials. Okay, hence it is named as lysosome. It was first discovered by Christian D. Dewey, he discovered it, but the name lysosome was given by Novikov. दोनों याद रखने का. The discoverer or the inventor was Christian D. Dewey, and the name was suggested by Novikov, lysosome. This word was suggested or termed by Novikov. Okay, as usually we study a cell organelle in various parts like its discovery, its presence, absence in various cells, its structure and its functions. We have formulated that table in the first lecture only. So in the same manner I am going to teach this one also. This discoverer is Christian D. Dewey, named by Novikov. Now it is found in which cells and absent in which cells. So it is theoretically found in all animal cells. Okay, it is most commonly found in all animal cells except RBCs, mature RBCs. Plus it is also absent in plant cells. Plant cells में नहीं है ये. देखो कितना अजीब है. Lysosomes are theoretically present in plant cells but they are practically absent in plant cells. Theoretically present but practically absent means what? Instead of ribosomes, vacuoles and spirosomes of plant cell, they perform the function of lysosome of digestion. Plants में क्या रहता है? Lysosomes नहीं रहते plant cell में. Okay, you can see the animal cell and plant cell. So in only animal cell you can see the presence of lysosome, but in plant cell the lysosome is absent. Instead of lysosome, there we find vacuoles which perform the similar function, which perform the same function as that of your lysosome. तो plants में generally नहीं रहता vacuole, but there are certain exceptional cases now they have been discovered, such as the root tip cells of onion, maize. इस तरीके के cells plant cells में neurospora इस फंगस में भी ये मिला हुआ है. So in this is a fungus. Okay, we'll see it about in the biological classification. But in these cells it has been discovered. Animal cells में तो रहता ही है, but plants के कुछ plants जैसे कि onion, maize, इनके root tips में, इनके जो fibrous roots है, उनके tips के जो cells है वहां पर lysosomes present मिले हैं. Otherwise they are generally absent in plant cells. Then who will perform the function of lysosomes in that plant cell? It may be vacuole or spirosomes. They will also contain some enzymes that will digest the material. Okay, we will see its function. Then RBCs, they are also without lysosomes. All prokaryotic cells, they are also without lysosomes. Prokaryotes में भी नहीं रहते. We have seen in the structure of bacteria.
ओके, सो दीज आर प्रेजेंट हियर, एब्सेंट हियर. ओके, नेक्स्ट अगर हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे, सो इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. एक सिंगल मेम्ब्रेन रहेगा, अ थिन यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट ऑफ मेनी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. More than 50 hydrolytic enzymes can be seen in a large lysosome. Above they contain 50, more than 50 hydrolytic enzymes, 50 hydrolytic enzymes such as phosphatases. फॉस्फेट ग्रुप का ब्रेकडाउन करने वाले फॉस्फेटेज, एज लगा दिए तो एंजाइम बन जाता. वर्ड के एंड में अगर एज वर्ड आया मतलब समझ लेने का वो एंजाइम है. प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करने वाले प्रोटीएज, सल्फेट का ब्रेकडाउन करने वाले सल्फेटेज, न्यूक्लिक एसिड्स का ब्रेकडाउन करने वाले न्यूक्लिएज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने वाले गैलेक्टोज का ब्रेकडाउन, शुगर्स का ब्रेकडाउन करने वाले पॉलीसेकेराइडेजेस, मोनोसेकेराइडेजेस, डाइसेकेराइडेजेस, एज लगा देने का बस उसके एंड में. लिपिड्स के लिए लाइपेजेस. ओके, तो इस तरीके से अलग अलग चीजों को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स इसके अंदर रहेंगे. लगभग 50 से ज्यादा ऐसे हाइड्रोलिसिस करने वाले एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन दिस सिंगल सैक लाइक स्ट्रक्चर. ओके, एंड दैट विल contain this more than 50 hydrolytic enzymes. But you can never see, you will never find some enzymes like cellulases जो सेल्यूलोज का ब्रेक डाउन करेंगे. क्यों नहीं रहेगा ये एंजाइम? क्योंकि सेल्यूलोज इज प्रेजेंट इन सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल. ओके, तो सेल्यूलोज का ब्रेक डाउन करने के लिए फिर वो नहीं रहेगा वहां पे, अदरवाइज सेल वॉल ही ब्रेक हो जाएंगी. एनिमल सेल की अगर बात करें तो एनिमल्स के सेल में सेल्यूलोज का डाइजेशन हम नहीं कर सकते. सो देयरफॉर वी डोंट हैव सेल्यूलेजेस इन लाइसोसोम्स. So you will never find this one, but you can find these ones. Okay, these enzymes are present, but cellulase is absent. Then the pH of lysosome is very important. Lysosome has a different pH than the outer cytoplasm. लाइसोसोम के बाहर जो पूरा साइटोप्लाज्म पड़े हुआ है, तो लाइसोसोम का जो पीएच रहता है, दैट पीएच ऑफ लाइसोसोम इज एसिडिक एंड इट इज अबाउट पीएच इज 5 लेस देन 7 पीएच. अगर आपको पीएच स्केल पता होंगी तो बीच में 7 रहता है, इधर 14 रहता है, इधर 0 रहता. 7 रहता तो मतलब वो न्यूट्रल रहेगा वो केमिकल. 7 से ज्यादा है तो मतलब वो बेसिक है, और 7 से कम है तो वो एसिडिक है. तो यहाँ पे 5 रहेगा इसका पीएच स्केल पर. अगर तुमने इसके अंदर का कंटेंट निकाले लाइसोसोम का और उसके पीएच टेस्टिंग किए, सो यू विल फाइंड दैट द पीएच ऑफ दैट मटेरियल इज 5. जनरली इट इज एसिडिक. इट इज लेस देन साइटोप्लाज्मिक पीएच. साइटोप्लाज्म का ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास रहता, थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक रहेगा, लेकिन जनरल इसका पीएच साइटोप्लाज्म से कम रहता. अब ये एमसीक्यू में आपको मिलेगा, लाइन घुमा के पूछते हैं आपको. पहले तो सही आंसर क्या है, पहले लाइन क्या है, लाइसोसोम हैव an acidic pH that is less than 7 and the value is pH is equal to 5. It is less than the cytoplasmic pH. लेकिन आपको एमसीक्यू में घुमा के पूछते, क्या उल्टा बोलते, साइटोप्लाज्म हैज लेस पीएच देन लाइसोसोम्स. साइटोप्लाज्म हैज लेस पीएच देन साइटोप्लाज्म. अपोजिट है, साइटोप्लाज्म हैज मोर पीएच देन लाइसोसोम. तो आपको याद रखने का है, इसका पीएच 5 रहता, 7 से कम रहता. एसिडिक पीएच पे इसके एंजाइम्स वर्क करते. व्हाई देयर इज लो पीएच? बिकॉज दीज एंजाइम्स दे वर्क properly, they work optimally at pH 5, that is pH less than 7. एसिडिक pH पे अच्छे से काम करेंगे, तो इसके लिए इनका pH 5 रहेगा, 7 से कम है. ओके, सो दिस इज अबाउट द pH रेंज, pH वैल्यू ऑफ लाइसोसोम. अब इसका ओवरऑल तुम्हारे को इतना पूरा होगा. दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर. डायग्राम में देख रहे हो तो एक सैक है, बस उसमें कुछ एंजाइम्स रखे हैं. We have seen in the functions of Golgi body that Golgi body give rise to प्राइमरी लाइसोसोम. प्राइमरी लाइसोसोम बोल के अपन ने एक वर्ड यूज किए थे. तो ये जो लाइसोसोम है, दिस इज द लाइसोसोम. इट अराइजेस फ्रॉम गोल्गी apparatus. ठीक है. Origin of lysosome means it arises from which structure? So lysosome arise from Golgi apparatus. हमने देखे थे ये न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस के पास में रहते तुम्हारे ER, स्मूथ ER, रफ ER दोनों रहेंगे. यहाँ पे ट्यूबलेट जो रहेंगे they are smooth ER and the cisternae containing ribosomes they are rough ER, RER, SER. और इसी के पास में रहेंगे तुम्हारे सिस फेज वाले, ट्रांस फेज वाले तुम्हारे
Okay, this is the cis face, this is the trans face of Golgi body. So they are like positioned like this. तो कैसे बनता लाइसोसोम? तो जो कोई भी एंजाइम्स है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, दैट हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स दे आर प्रोड्यूस्ड इन आरईआर. हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम हमने ये ईआर के फंक्शन में देखा था. कॉमन फंक्शन ऑफ ईआर, इट प्रोड्यूसेस द एंजाइम्स फॉर लाइसोसोमल एंजाइम्स, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स. तो वो एंजाइम्स यहाँ पे तैयार होंगे, यहाँ से वो वेसिकल्स में पैक होंगे इन द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स. एक सिस्टर्नी से दूसरी सिस्टर्नी उसके थ्रू होते हुए यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे फिर वो वेसिकल्स दे विल एंटर इनटू दिस सिस फेस और वो वेसिकल्स फिर ज्वाइन होंगे, उनमें मॉडिफिकेशन होगा एंड दे विल बिकम मैच्योर एंजाइम्स, एक्टिव एंजाइम्स जैसे काम करने जैसे एंजाइम्स बन जाएंगे. अल्टीमेटली दैट एंजाइम कंटेनिंग वेसिकल इज फॉर्म्ड from the trans phase and it will be released here. This is known as your primary lysosome. ये कौन सा लाइसोसोम है? प्राइमरी लाइसोसोम. It consists of only inactive enzymes. कैसे एंजाइम्स है इसके अंदर? इनएक्टिव एंजाइम्स. अभी इसके एंजाइम्स काम नहीं कर रहे. ओके, आप बोलेंगे सर एक्टिव हो रहे थे आप थोड़ी देर पहले, अभी इनएक्टिव. अरे इनएक्टिव इन द सेंस जब तक उनका जो सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर उनको काम करना है वो चीज उनको मिलेगी नहीं, तब तक वो वैसे ही बैठे रहेंगे. लेकिन वो काम करने लायक बन गए हैं. ईआर में जब वो तैयार होते तो सिंपल चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स रहेंगे, साधारण से प्रोटीन्स रहेंगे, वो सबस्ट्रेट के सामने कुछ भी नहीं कर पाएंगे. इसके लिए अपन क्या करते, ऐसे कच्चे पक्के जो रहते हैं एंजाइम्स उनको अपन मॉडिफिकेशन के लिए गोल्गी के पास भेजते. गोल्गी बॉडी उसको मॉडिफाई करेगा, उसके अंदर ग्लाइकोसिडेशन, लाइपोजाइलेशन, व्हाटएवर द प्रोसेस विल ऑकर हियर, मिथिलेशन वगैरह, और वो प्रोसेस करने के बाद उसको एक मैच्योर एंजाइम बना देगा. अब ये एंजाइम इट कैन नाउ एक्ट ऑन इट्स सबस्ट्रेट, वो उसका ब्रेकडाउन करने के लिए तैयार है. ठीक है, तो वो ब्रेकडाउन करने वाले एंजाइम इसमें है, बट दे आर इन इनएक्टिव स्टेज. they are not working now because their substrate is not there. अभी सिर्फ एंजाइम्स भरे वाला है इसमें. ओके, अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, तो अब इधर एक सेल इमेजिन करते हैं अपन. ये पूरी एक सेल है, ऐसे इमेजिन किए. तो जब एक फूड पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल मैं मैकेनिज्म समझा रहा हूँ और टाइप्स भी समझा रहा हूँ और फंक्शंस भी समझा रहा हूँ एट अ टाइम. हम उसको लास्ट में कलेक्टिव उसको पॉइंट वाइज नोट कर लेंगे. तो ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली इनएक्टिव एंजाइम्स. दिस प्राइमरी लाइसोसोम रिमेन्स देयर ओनली when a virus, bacteria or food particle it enters the cell, so that is captured in the form of a vesicle. ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन इस तरीके से उसको कैप्चर कर लेगा. ओके, इट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस. अपन ने फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखे थे. इनवर्ड मूवमेंट ऑफ मटेरियल इज नोन एज एंडोसाइटोसिस. ओके, एंडोसाइटोसिस हो गया. सॉलिड मटेरियल है, इट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस. solid material is entering, hence it is called phagocytosis. और phagocytosis करके एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, this is called phagosome. Phagosome. When cell allows entry of solid material, that material is packed into a vesicle. That structure vesicle is known as phagosome. phago मतलब engulf कर लिए सेल ने, और zoma मतलब बॉडी, तो जो छोटा सा एक वेसिकल बना, दिस वेसिकल इज कॉल्ड फैगोसोम. फैगो मतलब एनगल्फ, सेल ने एनगल्फ कर लिया उसको. ठीक है, दिस फैगोसोम विल नाउ कम हियर, इट विल जॉइन विद दिस प्राइमरी लाइसोसोम. प्राइमरी लाइसोसोम विल अटैक ऑन इट एंड इट विल रिलीज. देखो इस तरीके से रिलीज होगा. अभी हमारे एंजाइम्स वाला पार्ट है. ठीक है, हम इसको ब्लू कलर से नोट करते. ओके, एंड दिस इज योर फैगोसोम. तो क्या होगा, दोनों के दोनों फैगोसोम एंड प्राइमरी लाइसोसोम विल जॉइन, दे विल यूनाइट एंड दे विल फॉर्म अ लार्ज बॉडी which is now having a food material, virus, bacteria, whatever is present here, which is taken up by cell. That material along with the enzymes of your primary lysosome, दोनों मिल गए. Okay, now these enzymes will become active. These enzymes will become active. They will start destroying the material. They will start breakdown of that material. अब वो काम करना चालू कर दे. And therefore, what will happen? This material will be broken down. So this structure which is now formed is called secondary lysosome. Secondary lysosome, also known as heterosome. Also known as heterosome, which consists of active enzymes. Which consists of active enzymes
and the digestion is now started. It is the digesting vacuole lysosome. ये डाइजेशन करने वाला लाइसोसोम. पहले वाला लाइसोसोम कैसा है, उसमें सिर्फ एंजाइम्स है, वो अभी डाइजेशन नहीं कर रहे. लेकिन जब उसके अंदर अपना रॉ मटेरियल अपन डाल देंगे, फूड डाल देंगे, तो जो फिर काम चालू कर देंगे, जो लाइसोसोम काम करने वाला है, ब्रेक डाउन करने वाला है, this lysosome is now called secondary lysosome. It consists of active enzymes along with the digesting material. It is without digesting material, it is with digesting material. Hence it is also called heterosome. Okay, different than normal lysosome. ये डाइजेशन कर लेगा पूरा. ओके, अब डाइजेशन होने के बाद क्या होगा, उसमें कुछ कचरा वापस से पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा और फिर धीरे 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 गायब हो जाएगा और उसके अंदर का कुछ मटेरियल साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा. और उसके बाद क्या होगा, एकदम ऐसे हल्की सी कचरा और थोड़ा बहुत कुछ कचरा वचरा बच जाएगा, एकदम लाइट माइन्यूट अमाउंट उसमें से जो डाइजेस्ट नहीं हुआ. कुछ कचरा रहता है इसमें, 100% डाइजेशन नहीं होगा, एकदम थोड़ा सा कचरा उसमें बच ही जाएगा. सम वेस्ट इज रिमेनिंग देयर. इट इज कॉल्ड, इट इज अ that waste is present in a small lysosome. This is called residual body. Residual body. Residue मतलब बचा हुआ part, remaining part. So after the complete action of secondary lysosome, complete digestion by secondary lysosome, still some waste is remaining there in the lysosome, and this secondary lysosome gets converted into residual body containing the waste, which moves towards the plasma membrane, और वो यहाँ आके it will join with plasma membrane and it will release that waste outside the cell. It will release that waste outside the cell. और यहाँ पे blood vessels वगैरह रहेंगे, उनके अंदर फिर blood के थ्रू वो कुछ भी, जो कुछ भी waste है, that waste is taken for removal outside the body. ओके, तो इस तरीके के 3 लाइसोसोम्स बने, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शियरी. इंस्टेड ऑफ टर्शियरी इसको रेसिडुअल बॉडी बोल सकते हैं अपन, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ वेस्ट. तो इनएक्टिव एंजाइम्स किसमें प्रेजेंट है, प्राइमरी लाइसोसोम. एक्टिव एंजाइम्स और डाइजेशन की प्रोसेस किसमें चालू है, सेकेंडरी. के एमसीक्यू मिलेंगे आपको. डाइजेशन की प्रोसेस करने वाला लाइसोसोम कौन सा है, सेकेंडरी. कचरा बचाला किसमें है, वेस्ट किसमें पड़ा हुआ है, रेसिडुअल बॉडी. ओके, कुछ लाइसोसोम्स तो ऐसे भी, सो यहाँ पे 3 फंक्शंस हो गए इसके लाइसोसोम के. इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, देखो मतलब सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है. ओके, दिस इज कॉल्ड इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. विद दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रासेल्युलर डाइजेशन. ओके, सिमिलरली एक्स्ट्रा सेल्युलर भी हो सकती. ये प्राइमरी लाइसोसोम यहाँ से बाहर जाएगा डायरेक्टली, और यहाँ पे कुछ कचरा कोई तो भी पड़े वाला है, तो वो डायरेक्टली बाहर जाके अपने एंजाइम्स रिलीज कर देगा बाहर की तरफ, और एंजाइम्स बाहर का बाहर डिस्ट्रक्शन करेंगे. दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन. ये सेल के अंदर जिस तरीके से डाइजेस्ट किया उसने, उसी तरीके से बाहर एंजाइम रिलीज कर देगा एंड इट विल डू एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन. ओके, एक और फंक्शन है इसके साथ में, द डाइजेशन ऑफ एक्सेस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स. डाइजेशन ऑफ एक्सेस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स और ओल्ड सेल ऑर्गेनेल्स. क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो. अब यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया है. हियर देयर इज अ माइटोकॉन्ड्रिया. इट इज ओल्ड इनफ, उसकी एज हो गई, उसका काम करना बंद हो रहा है, धीरे धीरे वो वर्किंग खत्म हो रही है इसकी. या फिर कोई तो भी अदर सेल ऑर्गेनेल है, लाइक योर क्लोरोप्लास्ट, लाइक योर क्लोरोप्लास्ट. राइबोसोम्स, कुछ ऐसे राइबोसोम्स है जिनका काम हो गया, अब उनकी उम्र हो गई, वो काम नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते. तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये यहाँ पे जाएगा, उसके अंदर के एंजाइम्स वो यहाँ पे रिलीज कर देगा. इट विल जॉइन विद द मेम्ब्रेन ऑफ योर सेल ऑर्गेनेल एंड इट विल रिलीज द एंजाइम्स हियर, एंड दैट एंजाइम्स विल स्टार्ट डाइजेस्टिंग ओन सेल ऑर्गेनेल्स. खुद के ही सेल ऑर्गेनेल्स, ये खुद की सेल है, उसके ही ऑर्गेनेल्स है, मतलब खुद की बॉडी को नुकसान कर रहा हो, खुद के ही ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा हो. ओके, सो दैट टाइम द लाइसोसोम विल स्टार्ट डाइजेस्टिंग ओन सेल ऑर्गेनेल्स. It is called autophagy. Autophagy. Auto means own, खुद के. Phagy means engulf करना, digest करना. So when lysosome digests its own cell organelles, so that process of digestion is known as autophagy. When lysosome digests or eats up its own cell organelles, it is called autophagy. ये कब करना पड़ता ऑटोफेजी, इसके कुछ कंडीशंस रहते हैं. सेल ऑटोफेजी कब करती, ऑटोफेजी करने के कंडीशंस, नंबर 1, इफ द सेल ऑर्गेनेल्स आर एक्सेस,
एक्सेस ज्यादा हो गए, जरूरत से ज्यादा हो गए, हमको 5 माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए थी मैक्सिमम एक सेल में, लेकिन वो 6 हो गए, 7 हो गए। सो एक्सेस ऑफ 2 सेल माइटोकॉन्ड्रिया विल बी डिस्ट्रॉयड बाय लाइसोसोम्स। 5 की जरूरत है तो 2 क्या करने का एक्स्ट्रा, उनको नौकरी पे से निकाल देंगे, नौकरी मतलब उनको काम पे से निकाल दो, यहाँ से डिस्ट्रॉय कर देंगे। या व्हेन दिस सेल ऑर्गेनेल इज ओल्ड, व्हेन दिस सेल ऑर्गेनेल इज ओल्ड, बुढ़ा हो गया सेल ऑर्गेनेल, उसका काम खत्म हो गया, कैपेसिटी नहीं है उसकी काम करने की, उस टॉर्न हो गया, वो खराब हो गया, तो उसको निकाल दो। या तीसरी कंडीशन, व्हेन दिस सेल इज अबाउट टू डाई, सेल डेथ, व्हेन सेल इज अबाउट टू, पूरी सेल ही जब काम खत्म हो गया, सेल को नुकसान हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, उसकी एज हो गई, अपने को वो सेल को रिप्लेस करना है, वहां पे नई सेल तैयार करना है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता, आजू बाजू के सेल्स के लाइसोसोम्स, पहले तो अंदर के ही लाइसोसोम्स काम शुरू कर देंगे, सेल डेथ में वो हेल्प करेंगे। एंड दैट प्रोसेस ऑफ सेल डेथ इज नोन एज एपोप्टोसिस। प्रोसेस ऑफ सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, एकदम प्लानिंग से होता कि पहले क्या डिस्ट्रॉय करने का, उसके बाद क्या डिस्ट्रॉय करने का, और वो पूरी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। वो स्पेस में फिर आजू बाजू के सेल्स में से कोई एक सेल डिवाइड होकर उसको रिप्लेस कर देंगे और एक नया सेल वहां पे आ जाएगा। So programmed cell death is known as apoptosis. Programmed cell death is known as apoptosis. Cell death, cell का मरना मतलब ही apoptosis. Lysosomes will help in apoptosis. Lysosomes will help in apoptosis by destroying the cell itself. जब ये खुद को ही नुकसान पहुंचा सकते हैं, therefore lysosomes are regarded as suicide bag of cell. सुसाइड बैग ऑफ सेल, कितना खतरनाक नाम है देखो, सुसाइड बैग, मौत का सामान लेके फिर रहे। इमेजिन इफ व्हाट हैपेंस इफ दिस लाइसोसोम बर्स्ट्स, क्या होगा, उसके एंजाइम्स निकल जाएंगे और आजू बाजू जाके दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे। बट ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि लाइसोसोम्स के एंजाइम्स किस पीएच पे काम करते, दे वर्क एट एसिडिक पीएच, ओके, लेकिन वो अंदर ही काम कर सकते हैं। लेकिन साइटोप्लाज्म का पीएच थोड़ा सा न्यूट्रल है, बेसिक है, तो बाहर जाके वो काम नहीं कर सकते, तो साइटोप्लाज्म का पीएच हमको बदलना पड़ेगा तभी वो काम करे। इसके लिए लाइसोसोम्स क्या करते, खुद जाते कोई भी सेल ऑर्गेनेल के पास और उसको डिस्ट्रॉय करते। सो इस तरीके से लाइसोसोम्स विल डिस्ट्रॉय दी ओन सेल ऑर्गेनेल्स इफ दे आर इन एक्सेस और ओल्ड, और इफ दे आर अबाउट टू डाई अलोंग विद दिस सेल। तो इस तरीके से ये फंक्शंस भी हो गए यहाँ पे उनकी। क्या क्या फंक्शंस रहेंगे, पहले तो 4 टाइप्स क्या बन गए यहाँ पे, दी 4 टाइप्स, प्राइमरी लाइसोसोम्स हैविंग इनएक्टिव एंजाइम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स हैविंग एक्टिव एंजाइम्स along with digestive material, tertiary lysosomes or residual bodies consisting of waste remaining after digestion by lysosomes, secondary lysosome, and the autophagosomes, ये जो ऑटोफेजी करने वाले इनको क्या बोलने का, ऑटोफैगोसोम्स मीन्स जो खुद के सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्ट्रॉय करने वाले, लाइसोसोम्स दैट आर डिस्ट्रॉइंग द सेल ऑर्गेनेल्स, दे आर कॉल्ड ऑटोफैगोसोम्स। ओके, दे आर डूइंग व्हिच प्रोसेस, ऑटोफेजी। दिस प्रोसेस इज फैगोसाइटोसिस। अगर लिक्विड मटेरियल रहा तो इट इज पिनोसाइटोसिस। ओके, पिनोसाइटोसोम्स रहेंगे उसके, फैगोसाइटोसोम्स, पिनोसाइटोसोम्स, ऑटोफैगोसोम्स। तो नाम बस उसको फैगो और सोमा ये 2 वर्ड लगा देने, ठीक है। So functions, intracellular digestion, extracellular digestion, your autophagy, then cell death, they will also help in cell death, that is known as programmed cell death. Therefore they are called suicide bags of cell or atom bomb of cell. Okay, whatever be the dangerous names जो भी तुम रख सकते हैं इसके नाम, so they are called that part, atom bomb, suicide bags, ठीक है। These are the names, digestive material, breakdown compartment, okay, other names, so many names are given, but suicide bag सबसे famous name है, suicide bag, which cell organelle is regarded as suicide bag of cell, it is lysosome, ठीक है। इसके अलावा भी कई सारे फंक्शंस है, सच एज मेटामॉर्फोसिस में लॉस ऑफ टेल ऑफ लार्वा वगैरह जो कुछ होता। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इसके जो फोटोज है आपको मीनोहेल आते गए, आप वो देख लो, वीडियो वगैरह भी छोटे छोटे रन हुए। At the end also I will join a small video that will clearly explain this part, वो at the end आपको ज्वाइन कर दूंगा मैं, आप उसको देख लेना एक बार, आपको फंक्शंस अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मैं एक बता रहा हूँ फंक्शंस, इट इज कॉल्ड लॉस ऑफ टेल और लॉस ऑफ टेल
of larva during metamorphosis in frog. फ्रॉग में कैसे होता, तो फ्रॉग का जो लार्वा रहेगा इट विल हैव स्ट्रक्चर लाइक दिस, आपको डायग्राम भी दिख रही है, इट विल हैव स्ट्रक्चर लाइक दिस, एक टेल है उसको। लेकिन जो अडल्ट फ्रॉग है तुम्हारा उसको इस तरीके की कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, imagine it as a frog. Okay, it is tailless है, उसको टेल नहीं है, इसको टेल है, तो इसकी टेल लार्वल स्टेज में थी लेकिन इसकी टेल बाद में गायब हो जाती है, इट इज एन एम्फीबियन। ओके, तो इसकी टेल गायब कैसे होती, तो इसकी जो सेल्स रहते टेल के, सो दैट सेल्स आर डिस्ट्रॉयड बाय लाइसोसोम्स ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ दिस लार्वा। उसकी लार्वा टैडपोल की ग्रोथ, दिस इज एक्चुअली टैडपोल, तो टैडपोल की ग्रोथ जब होती इनटू अडल्ट, सो ड्यूरिंग दैट मेटामॉर्फोसिस, मेटा मींस चेंज, मॉर्फोसिस मतलब मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो जब इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बदलता, एडल्ट में कन्वर्जन होता, तो इसके दौरान क्या होता, इसके जो टेल फाइबर्स है, टेल सेल्स है, दैट टेल सेल्स आर लॉस्ट बाय द डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी ऑफ लाइसोसोम। तो मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, इट लीड्स टू लॉस ऑफ टेल ऑफ टैडपोल in frog during metamorphosis, and this is done by the lysosome. Okay, lastly there is one more function that they help in fruit ripening. अब जो fruit cells रहते हैं they also become loose with increasing age, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती रहती। एनी फ्रूट, टेक एनी एग्जांपल ऑफ एनी फ्रूट, फॉर एग्जांपल बनानास और मैंगो, तो टाइम के साथ वो जो मैंगो रहेगा, कैरी की अगर आप बात करें तो कैरी धीरे धीरे लूज होता है, तो उसके सेल्स थोड़े से, कैरी बहुत एकदम सख्त रहेंगे, सॉलिड रहेंगे, लेकिन मैंगो जो रहेगा राइप वाला, उसके सेल्स थोड़े से लूज रहेंगे। व्हाई? बिकॉज द सेल्स ऑफ दैट प्लांट विल रिलीज द एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरानेज। टमाटर की बात करो, अगर टमाटर, कच्चे टमाटर ग्रीन रहते हैं और वो मैच्योर होने के बाद में थोड़े से पिलपिले हो जाएंगे और लूज हो जाएंगे उसके सेल्स, तो दैट एंजाइम विच हेल्प्स इन फ्रूट राइपनिंग इज पॉलीगैलेक्टोयूरानेज। इसका नाम आपको बायोटेक्नोलॉजी इस चैप्टर में 12th में फिर से आएगा, तो याद रखो अभी से। दिस कॉजेस राइपनिंग ऑफ फ्रूट, एजिंग प्रोसेस को प्रमोट करता है ये एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरानेज, एंड हेंस द सेल्स विल बिकम लूज, दे विल बिकम ओल्ड एंड द फ्रूट विल राइप फास्ट। तो ये राइपनिंग के प्रोसेस में तुम्हारे को लाइसोसोमल एंजाइम्स विल बी रिलीज, इट इज अ लाइसोसोम एंड लाइसोसोमल एंजाइम। ओके, इस तरीके से तुम्हारे ये कुछ फंक्शंस है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, एक्स्ट्रासेल्युलर डाइजेशन, ऑटोफेजी मींस डाइजेशन ऑफ ओन सेल पार्ट्स, सेल डेथ, सेल डिवीजन, इट आल्सो हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेल को तोड़ने में भी मदद करेगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन। देन ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, लॉस ऑफ टेल इज ड्यू टू लाइसोसोम, लॉस ऑफ ओल्ड सेल्स, वही सेल डेथ में आ गया। देन फ्रूट राइपनिंग, दीज आर द 6-7 फंक्शंस ऑफ योर लाइसोसोम। ओके, बीच बीच में आपको जो फोटोज आई थी कुछ सेकंड्स के लिए, उनको आप नोट करके रख लो फंक्शंस आपके पास। इतने सारे फंक्शंस अलग अलग जगह पे दिए हुए, आपको कलेक्टिव मैंने एक जगह पे करवाया है, सो जस्ट राइट देम डाउन, आपको हो जाने चाहिए अच्छे से याद ये सारे फंक्शंस। एक और छोटा सा बीट यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, लाइसोसोमल डिसऑर्डर्स और डिसीजेस। कभी कभी क्या होता, लाइसोसोम के अंदर कोई एंजाइम रहने से या किसी एंजाइम के ना रहने से कुछ डिसीजेस हो सकती है, जैसे कि टे-सैक्स डिसीज एक नाम की डिसीज है, TAYSACHS। ये डिसीज में क्या होगा, लाइसोसोम विल बी विदाउट द लाइसोसोम विल नॉट हैव वन एंजाइम। न्यूरॉन्स में का जो लाइसोसोम रहेगा दैट विल बी विदाउट वन एंजाइम, दैट एंजाइम इज हेक्सोसामाइनिडेज। ओके, हेक्सोसामाइनिडेज ये जो एंजाइम है, दिस एंजाइम विल नॉट बी प्रेजेंट इन द न्यूरॉन्स lysosome, and hence that person will be having स्लो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, बहुत स्लो उसकी एक्टिविटी रहेंगी, उसके इम्पल्स बहुत स्लो जाएंगे ड्यू टू द लैक ऑफ एंजाइम इन लाइसोसोम। इसी तरीके की एक और डिसीज है गॉशर्स डिसीज। इस डिसीज में क्या होगा, देयर इज एब्सेंस ऑफ अनदर एंजाइम, फॉर एग्जांपल दैट एंजाइम इज योर ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज। दिस एंजाइम इट इज एब्सेंट इन लाइसोसोम of neuron, again neuron nerve your neural nervous disease है ये भी, Gaucher's disease। तो ये एंजाइम जब नहीं रहेगा your glucocerebrosidase, so that time also the person will feel some
इनएक्टिविटी उसके प्रॉब्लम होते रहेंगे. ओके, सो दिस टू डिसीजेस दे आर एसोसिएटेड विद द एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स इन लाइसोसोम. कुछ कभी कभी तो ऐसा होता है लाइसोसोम ठीक से काम नहीं करते, तो वो जो रेसिडुअल बॉडी है वो कचरा बाहर नहीं फेंकती, कचरा अंदर ही जमा होता है, सेल्स में टॉक्सिसिटी हो जाती, सेल्स खराब हो जाते. मीन्स इफ लाइसोसोम्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली योर सेल्स में develop certain disorders, malfunctions. Hence, lysosomes working is also important. They should work normal. Okay, ऐसे कुछ lysosomal associated diseases बोलते हैं, इनका एक ग्रुप ही है. अगर आप गूगल किए तो आपको पता चल जाएगा lysosomal associated disorders और diseases. So, lysosome enzymes associated disorders. तो आपको वो उनमें Tay-Sachs disease और Gaucher's disease का नाम आएंगे ही आएंगे. ठीक है, Tay-Sachs बहुत फेमस है और Gaucher's disease जो आपको बताया अभी, दोनों बहुत फेमस डिसीज है, लाइसोसोम से एसोसिएटेड है, याद रखो. ओके, दिस इज इनफ अबाउट योर लाइसोसोम्स. इसमें इतना काफी है. आपको स्ट्रक्चर, फंक्शंस, इसके टाइप्स 4 टाइप्स थे जिसकी वजह से अपन देखे अभी पूरे फंक्शंस वगैरह. एक बात और नोट कर लो, ड्यू टू दी 4 डिफरेंट शेप्स, इनके चारों के शेप्स अलग अलग रहते हैं, प्राइमरी के, सेकेंडरी का, टर्शरी मतलब रेसिडुअल बॉडी या ऑटोफैगोसोम. इनके शेप्स अलग अलग रहते हैं, साइजेस अलग अलग रहते हैं. हेंस इट इज कॉल्ड अ पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल. क्या बोलते हैं लाइसोसोम को? लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फिक. पॉली मतलब मेनी एंड मॉर्फिक मतलब मॉर्फोलॉजीज. तो देखो अलग अलग मेनी उसके मॉर्फोलॉजीज है, साइजेस है, अलग अलग साइजेस के लाइसोसोम्स प्रेजेंट है. सिंस इट हैज 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल. इट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर लाइसोसोम, इट्स टाइप्स, इट्स फंक्शंस. We'll study the structure and type functions of vacuole and the next part in our next lecture. Lysosomes are membrane-bound vesicles that contain hydrolytic enzymes. These enzymes digest particles or cells taken into the cell by phagocytosis. They also digest old organelles such as mitochondria. The hydrolytic enzymes that degrade proteins, nucleic acids, lipids, and carbohydrates are formed in the endoplasmic reticulum and then transported to the Golgi apparatus by transport vesicles. The lysosomes arise from the Golgi apparatus. When particles such as viruses or bacteria are ingested by phagocytosis, the lysosome fuses with the particle-containing vesicle, called a phagosome, and delivers the hydrolytic enzymes. Lysosomes also fuse with organelles such as defective or worn-out mitochondria. This results in the destruction and recycling of these structures.